السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ثقلین رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ہیرو ٹی وی۔ تمام آڈینس سے آج میں بات کروں گا۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، پاکستان کا ایک اثاثہ گیا تھا ارشد شریف، جن کا اب پتہ لگا ہے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے۔ مزید میرے ساتھ اس وقت میڈم سلمہ جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے کافی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ اس میں واقعی یہ جو تحقیقات کر رہی ہے گورنمنٹ، اور کس طرح سے کرنی چاہیے، وہ اپنا بتائیں گی بھی۔ سوشل ورکر ہیں، ایک بہت بڑی لیڈر بھی رہی ہیں، اور سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہے ان کا۔ تو میں نے آپ کا میڈم سلمہ کا تعارف کرا دیا، تو چلتے ہیں میڈم سلمہ کی طرف۔ میڈم کیا کہیں گی یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں ارشد شریف کی، آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو اس چیز پہ دل کی گہرائیوں سے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ ہمارا عظیم ہیرو جو شہید ارشد شریف جو بے دردی کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے لاپرواہی کری اور اس طرح کینیا میں جانا، اس کو دبئی سے نکال دینا، اب یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں ان صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں انٹرنیشنل، جو ارشد شریف کے اوپر وہ جو جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر وہ جا رہے ہیں اور جا کے وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ ان کا تو کچھ وہ نہیں لگتا تھا نا، وہ ہمارے پاکستان کا احساسہ تھا نا، تو ان کو یہ نہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا درد ہے کہ پھر بھی ان کو اس سے ایک بے گناہ اور ایک بہادر انسان کی، ایک سچے انسان کی، ایک پاکستان کا ہیرو تھا، اور جو ان بے قدرے لوگوں نے ان کو یہاں سے بھی اس کے لیے زمین تنگ کر دی، پھر وہ دبئی چلا گیا، دبئی میں بھی نہیں رہنے دیا، دبئی میں سے بھی اس کو نکال دیا، جو مجبوری اس کی تھی کہ وہ کینیا کیسے پہنچا، اس کو کیوں وہاں پہنچایا گیا، اس کو کون ٹریس کر رہا تھا، اس کے لیے کہ کیا کیا سسٹم تھے، جبکہ واضح طور پہ اس کی ویڈیو ابھی وہ چل رہی ہیں، اپنی زندگی میں وہ سب کچھ بتا سکا تھا۔ صدر پاکستان کو اس نے خط لکھا تھا، صدر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، مختلف جو صحافی ہیں ان کو سب کو پتا تھا کہ ایک وہ نڈر اور وہ ایک بہادر صحافی اور وہ شہیدوں کے خاندان کا وارث تھا، جس کے پیچھے 5 بچے ہیں، ایک اس کی بھتیجی ہے جو اس کا بھائی شہید ہوا تھا، 1 گھنٹے میں اس نے 2 جنازے ریسیو کیے تھے، 2 پرچم کیے تھے، پہلے والد کا پھر بھائی کا۔ اس بہادر ماں نے ابھی اس کا آخری ان کا یہ ایک وارث تھا، گھر میں ایک مرد تھا، تو اس کو بھی ان ظالموں نے اس کو بھی نہیں رہنے دیا۔ میں یہ ان سے سوال کرتی ہوں جنہوں نے 16 FIR اس کے اوپر کٹائی تھی کہ بھائی آپ ایسے کام کرتے کیوں ہو؟ کیونکہ صحافی تو وہ چیزیں وہ لکھیں گے، وہ بتائیں گے، وہ کریں گے، کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جو ان کے ظلم کا نشانہ نہیں بنا، جیسے عمران ریاض ہے اور شہباز گل پہ وہ کیا، انہوں نے تشدد کیا، ابھی اور صحافیوں سمیع ابراہیم ہے اور امیر ایاز ہے، اس طرح کے یہ ہتھ گنڈے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ اپنے اداروں سے میں گزارش کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام کے یہ جو اسپائر لوگ پی ڈی ایم کے بیٹھے ہوئے، مجھے ایک میرے سوال کا جواب دے دیں کہ ان میں کوئی ایسا انسان ہے جو اس ملک کو چلا سکے؟ اور صحافیوں پہ ظلم کرنا تو یہ کائیں کی بہادری اور کائیں کی یہ حکومت ہے جس کو 22 کروڑ عوام رد کر چکی ہے۔ 22 کروڑ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امہ مسلمان ہیں، جتنے ہمارے ملک ہیں، وہ اس کو رد کر چکے ہیں۔ اور جو پاکستان کے جو غیر ملکی ہیں لوگ، جو پوری دنیا ارشد شریف کے دکھ میں شریک ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس ماں کو، جس ماں نے اتنی اس بزرگی میں اور اس نے اتنی تکلیف برداشت کری ہے، آخری ان کا چشم و چراغ تھا وہ بھی ان ظالموں نے مٹا دیا۔ لیکن میرا یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پہ کہ جیسے ابھی ایک تازہ واقعہ جو کل ایک رونما ہوا ہے کس نے کہ جو تحسین جو وہ ہے تسنیم جو ہے حیدر شاہ، جو وہ نون لیگ کا 20 سال سے وہ ان کا معاون خصوصی تھا نواز شریف کا، جس نے یہ کیا ہے، بتایا ہے کہ اس کا اور ارشد شریف کا پلان بنا لیا گیا تھا، اور اس میں یہ 3 ان کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک 8 کو ہوئی ہے، ایک 20 جولائی کو ہوئی ہے، ایک 29 اکتوبر کو ہوئی ہے۔ لیکن اس کو کیا لچاری ہے، ایک لیڈر پاکستان کا عمران خان اس کے اوپر گولیاں چلانے کا اور ارشد شریف کا وہ اتنا احساس مسئلہ کوئی بندہ نہیں لے سکتا، لیکن کچھ تو ہے جو اس نے، کیونکہ جنہوں نے 16 FIR کٹائی ہیں ابھی تک اس کی ڈیڈ باڈی
नहीं आई थी, वो राणा सनाउल्लाह उसने वो फौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई वो सोने का स्मगलर था, और 2 बंदों पे जो सलमान इकबाल रवाए का जो मालिक है उसके ऊपर वैसे नहीं चलेगा, ये जितने दिन चलना था चल गया। इसे पाकिस्तानी कौम के पूरी दुनिया को पता है कि तुमने क्या बोया और तुम क्या काटोगे। लेकिन इस चीज़ की वो एक हमारा बहादुर सहाफ़ी और मेरी बहन जवेरिया सदीकी ने जो ये अपील की थी कि मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करती हूँ, अरशद शरीफ के यकीन करे जब हमें पता चला था कि अरशद शरीफ को इस तरह बेदर्दिया केनिया के मुल्क, क्योंकि केनिया का वो मुल्क है ही मंगोलों का, जालमों का, खुदगर्शी का। जितनी केनिया की पुलिस बदनाम है कि वो 5,000 से 10,000 से और 25,000 में वो बंदे को मार देती है। तो इस तरह ये बदनाम पुलिस है, और किसने दिया। और बड़े अफसोस की बात है कि फिर ट्वीट किया मरियम नवाज ने उसके ताबूत के साथ। इस तरह ये साफ जाहिर है, साफ खुल के सामने चीज़ आ रही है। अभी तो उनके अपने नुमाइंदे ने ये बात जाहिर कर दी है कि भाई इस तरह करके प्लान बनाया गया था, ऐसे करके। अल्लाह करे ऐसा हो। और मैं पाकिस्तान में अपनी पाक फौज को और मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट को मैं ये गुजारिश करती हूँ, मैं अपील करती हूँ कि अरशद शरीफ के खून रायगा ना जाए, उसके जालिम जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा दिए, सरेआम डी चौक में उनको फांसी दी जाए। और उसकी जो उस बच्चे हैं, जो उसकी अहलिया हैं, उसकी वालदा साहबा हैं, उनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये नौजवान ये हीरे मुल्क का सरमाया है। और मैं ये सवाल करती हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के जो हमारे पाक फौज है या हमारी अदलिया है कि खुदारा आखिरी उम्मीद 22 करोड़ की ये 2 इदारे हैं हमारे, जिनके साथ हम जिंदा है और जिनके लिए हम रात दिन दुआएं करते हैं। ये पाकिस्तानी कौम को इस तरह बेदर्दी से इस तरह करके फिर नहीं मारा जाए और लिया जाए। क्या अरशद शरीफ ने कोई, जैसे फजल रहमान ने बोला था कि जर्नैलों के हवाले से अरशद शरीफ ने ये बोला था, क्या मरियम नवाज ने ये बोला था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अरशद शरीफ ने ये बोला था? क्या जो इसने ईंट से ईंट बजा दूंगा कि अरशद शरीफ ने ये बोला था? या कोई उसने करप्शन किया था, या कोई वो मिनिस्टर था, या कोई वजीर आजम था, या सदर पाकिस्तान था? एक सच्चा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था। और जो मेरी पाक फौज के ऑपरेशन होते थे तो अरशद शरीफ ने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन वो फौज का नुमाइंदा था और पाकिस्तानी था, और जिसने हर मौजू पे, हर मोड़ पे जिसने हक और सच की आवाज़ उठाई। इसने ये बोला था मैं सच बोलूँगा चाहे मेरे सर में गोली लग जाए। और इतना बेदर्दी से मारना, इतना उनके घर में एक कैराम बरपा है। और पूरी कौम, आज मैं नहीं चाह रही कि मैं हैरान होती हूँ जब मैं रात दिन ये टीवी देखती हूँ तो कि पूरी दुनिया अरशद शरीफ के लिए रो रही है। जिस दिन हमने ये वाकया सुना था हमने सारा दिन खाना नहीं खाया। और मैं अपनी वालदा, जो अरशद शरीफ की वालदा है वो हमारी भी वालदा है। आज भी मैं यूट्यूब पे मैं राना सकलैन को मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद में अपनी खवातीन को जमा करके मैं अपनी वालदा, जो अरशद शरीफ की वालदा हमारी भी वालदा है, और जवेरिया बहन के लिए, अरशद भाई के लिए हम ये आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। हम ये चीज़ कभी भी नहीं छोड़ेंगे कि हम अरशद को भूल जाएं, कोई नहीं भूलेगा। हमारे नौजवान है, पीडीएम की एस्पायर जो टीम बड़ पीडीएम है, ये पाकिस्तान चलाएंगे, जिन्होंने हर एक शहरी के लिए जीना दुश्वार कर दिया। हम बोलते हैं कि भाई हमारी महंगाई में आवाम मर रही है, ये बोलते हैं तोशाखाना। हम बोलते हैं हमारी बिजली गायब है, ये बोलते हैं तोशाखाना। हम बोलते हैं भाई हमें हेल्थ की सहूलत नहीं है, जितने भी से सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें एक सिरिंज भी नहीं मिलती, वो भी हम बाहर जाके लेते हैं, तो ये बोलते हैं तोशाखाना। हम बोलते हैं ये ज़राअत तबाह होगी, हम बोलते हैं तोशाखाना। सैलाब में जवाब इनका ये होता है तोशाखाना। हम बोलते हैं भाई सैलाब में पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है, तो उन सैलाब मुतासरीन के लिए क्या पैकेज किया, महंगाई के इस पे क्या किया, तो इनका एक ही जवाब होता है तोशाखाना। भाई पहले ये अपने तोशाखाना का जवाब दें, हिसाब दें, फिर ये तोशाखाना की बात छोड़ें। ये इनके आपस के मसले, ये जो आवाम क्या चाहती है, आवाम के लिए क्या रिलीफ है, आवाम के लिए क्या महंगाई इतनी होगी, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो तोशाखाना, हम बड़े खुदकुशी करें। पेट्रोल की महंगाई की, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है, हर चीज़ में
इन्होंने किया क्या है? तो खुदारा हम 22 करोड़ अवाम, ये उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, ना कभी इनसे होगा। जो 30 साल में कुछ नहीं कर सके वो अभी भी कुछ नहीं करेंगे जुल्म और जातियों के अलावा। और उस बहादुर जवान को भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ, तस्नीम जो हैदर शाह, कि जिसने उसको अल्लाह ताला ने उसको इतना उसके दिल में रहम डाला, या उसके बच्चों का उसके दिल में आया ख्याल, या उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल आया, उसकी बेवों का ख्याल आया, जो इनके जंगल से उठ गया। वो साफ साफ कह रहा है कि मुखालफत तक तो जो थी वो बात चलो ठीक थी, लेकिन ये कत्ले आम पे उतर आए, हमसे ये सूटर मांगते हैं, हमसे ये बात करते हैं कि ये चीज़ आप फलाना कर, जो उनको पसंद नहीं आता उसको कत्ल कर देते हैं। लेकिन मरियम नवाज एक औरत नहीं है, एक ये आदमखोर है, और ये आदमखोरों की ये अल्लाह ताला इनको गर्क करे। क्योंकि और मैं ये बात वाजा करती हूँ मेरे अपनी 22 करोड़ आवाम को कि इस चैनल की यूट्यूब के तवज्जुह से कि इमरान खान की किसी की जरूरत नहीं है आज, अगर अवाम उसके साथ है ना। अब अवाम का सोचे, मैं सबसे, मैं अपने इदारों से, मैं अपनी पाक फौज से, मैं अपनी अदलिया से, मैं सबसे ये मैं अपील करती हूँ, मिन्नत करती हूँ कि खुदारा जो अवाम चाहे अवाम के हाथ में फैसला। बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया इस अवाम ने। हम ये आज भी बच्चियाँ जो 10-10 साल की, 12-12 साल की अगवा की जाती हैं, ज्यादती करके उनको मार दिया जाता है। तो इनसे सवाल करते ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बोलते हैं तोशा खाना। अरे ऐसा तोशा खाना हो क्या गया जो तुम किसी चीज की कोई चीज नजर नहीं आती है, सिर्फ तोशा खाना के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आती है। तो इस पे मैं अभी भी ये मैं बार बार मैं अपनी पाक फौज को, जिनके लिए हम 5 टाइम पढ़ के नमाज मांगते हैं, हमारी पाक फौज है जो अजीम पाक फौज है, जिसके लिए मेरे सांगड़ से, इस सांगड़ सिंध से, मेरे खानदान से अब सर्च करें कि कितने कुरैशी खानदान से नौजवान हैं जो फौज में और फौज में है। यहाँ हमारा तो घराना ही ऐसा, हम तो उस घराने से जो हम अपने पाकिस्तान को वोट दे के सब कुछ बर्बाद करके हम यहाँ आए थे। तो हमें इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद मुल्क में हमें इंसाफ और कानून चाहिए। हमारी अदलियाँ पावरफुल हो, अदलिया के साथ 22 करोड़ आवाम है, हमारी पाक फौज के साथ 22 करोड़ आवाम है। तो हम कभी भी अपनी फौज को, अपनी अदलिया को तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुदा के लिए इंसाफ हो। और जब तक इंसान बड़े के लिए भी, जैसे अभी शहबाज शरीफ अमेरिका में 2005 में बालाकोट में फंड दिया, तो वहाँ की अदालत में जब ये इसको बुलावा आया तो इंटरनेशनल लेवल पे ये चोर निकला, तो वहाँ से जब ये बुलावा आया तो बोलने लगे कि वजीर, उसके वकील ने बोला कि वजीर आजम है ये, इसके पास टाइम नहीं है, मसरूफियत है। बोला यहाँ के कानून में चाहे वजीर हो चाहे आवाम आम बंदा हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो अल्लाह करे मेरे पाकिस्तान में भी ऐसा कानून हो, और ये होगा इंशाल्लाह। अवाम ये निकली हुई है ना, तो ये कानून होगा। और हम अपने अदलिया का भी एहतराम करते हैं, अपनी पाक फौज के लिए तो दिल जान से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे, जो हमारी सरहदों की मुहाफिज है, जो हमारे मुल्क की मुहाफिज है, जिस कौम की मुहाफिज है। और कौम इससे, क्योंकि कौम है तो इदारे हैं, अगर कौम नहीं है तो इदारे नहीं है। कौम से वतन बनते हैं, और कौम से इदारे रियासतें बनती हैं, और कुर्बानी से वतन बनते हैं। तो ये कुर्बानी राया नहीं जाएगी। और फिर अरशद शरीफ के घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। और मैं अरशद शरीफ की माँ से, उनकी बीवी से, उनकी बच्चों से हम शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसे सीनियर सहाफ़ी को, ऐसे एक बहादुर निडर सहाफ़ी को, उसके लिए जगह तंग कर दी पाकिस्तान में। और उसके इस चीज़ में हम सब इस चीज़ के शर्मिंदे को कोई कुछ नहीं कर सका, और उसको कैसे यहाँ से मजबूर किया जाने पे, और कैसे फिर बेदर्दी से कीनिया में उसको कत्ल किया गया। और अभी भी हम आपके साथ हैं, पूरी 22 करोड़ आवाम अरशद शरीफ के कारण है। अरशद शरीफ हर किसी के दिलों में गूंजता है। कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ अरशद शरीफ का जिक्र ना हो। वो अभी भी जिंदा है, शहीद जिंदा होते हैं। और वो जो जिन्होंने जुल्म किया है उनका वो हश्र होगा, दुनिया देखेगी, इबरत का निशाना बनेंगे। और मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई पाकिस्तान का मुलव्वस हो तो उसको डी चौक में सरेआम फांसी दी जाए, ताकि कोई बंदा जुर्रत नहीं करे, कोई हुकूमत जुर्रत ना करे कि किसी सहाफ़ी को बेदर्दी से कत्ल किया जाए। तो और फिर मैं ये अपनी बहन जवेरिया से और अरशद शरीफ की माँ, या हमारी भी माँ, हम उनसे वादा करते हैं जब तक अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम हर फोरम पे, हर प्लेटफार्म पे उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने सोशल वर्कर मैडम सलमा की बातें सुनी। इनका कहना था कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो उनमें
پاک فوج کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج جو یہ تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کے رہنما جنہوں نے اپنا جو ہے جرم قبول بھی کر لیا ہے اور بیانات بھی دے دیے ہیں، تو مزید ہماری پاک فوج اور عدلیہ جو ہے اور جو ایک یہ بنائی گئی ہے، ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس میں اور بھی کتنے چہرے بے نقاب ہوں گے، تو ہم انتظار میں رہیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے دوبارہ جو ہے ایسے ہی کسی سوشل ورکر یا کوئی بھی اس چیز میں معلومات رکھتا ہو ان سے بھی ملیں گے، کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لائیں۔ اور ارشد شریف کا نہیں بلکہ یہ ہماری قوم کا ایک اثاثہ تھا جو انہوں نے قتل کر دیا، اسے شہید کر دیا۔ تو شہید کے تو ویسے زندہ ہوتے ہیں، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کے جو لوائقین ہیں ان کو اللہ پاک صبر و جمیل جو ہے عطا کرے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو یار میرا چینل لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔